Hello and welcome to Do I Like It, a Quint production where we review anything and everything under the sun. मेरा नाम है प्रतीक लिद्धू and in this episode I'll tell you do I like Yungsta's debut album Meen. ओके सो बातें स्टार्ट करने से पहले आई नीड टू लेट यू नो टू थिंग्स. नंबर वन, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, सो बीच में अगर कुछ खराश वराश की आवाज़ें आएँ तो थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा. एंड नंबर टू, मी अलॉन्ग विद अंजलि who is my co-host on our podcast The Big Story sat together with our political editor Aditya Menon and our principal correspondent Fatima Khan to talk about and dissect the Karnataka elections 2023 and how it has an effect on 2024 and the future and past of Karnataka politics. So usko suno yaar, बहुत बढ़िया और बहुत important chat है. I think if you guys don't know anything about Karnataka politics, I think this would be like a good starter for you to start from. And yeah, that also has our pretty faces in the episode because it's a video podcast, तो तुम्हें ज़रूर उसे सुनना और देखना चाहिए. You can just search The Big Story Karnataka on all the platforms where you get your podcasts from and you shall have it. Okay, let us talk about mean. पहली बात तो this mean is not English वाला mean, MEN वाला mean नहीं है कि you are such a mean person. This is the मछली वाला mean, है ना, because Yungsta is a Pisces और मैं भी Pisces हूँ by the way. So मैं तो anyway first level of connect वहीं हो गया था. And anyway I think I connect with Yungi on a very personal level because मेरे को चश्मिश rappers बहुत अच्छे लगते हैं. वो मतलब हमारा काफ़ी पोएटिक लाइन आई है कि हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया ही अलग है. Yes, so Meen is Yungsta's debut album released on Mass Appeal India and The Movement. The Movement is Says on the Beat का label and this album is produced also by Says on the Beat. उसकी सारी beat, executive production, mixing, mastering वो सब Says ने करी है. And straight off the bat I would just like to say that I really like the album cover which is designed by Vibhav Singh. बहुत प्यारा cover है यार, मतलब it really encapsulates the whole feeling of being a fish out of water and also getting Yungi का पूरा लाइफ का एक झलक हमें दिखाती है. देयर इज सेज एंड ऑल पीछे, देयर इज हिज फैमिली, हिज गर्लफ्रेंड में भी. आई थिंक आई कैन ऑल्सो स्पॉट असुर एंड आदित्य हिज डीजे एफ मैन इन द बैकग्राउंड. सो आई थिंक वो काफी मेरे को अच्छा लगा. एंड बीच में यंगी ऐसा एक्वामैन की तरह पानी से बाहर निकल रहा है इन ऑल हिज ग्लोरी, तो काफी अच्छा कवर था. आई थिंक वी शुड हैव मोर सच कवर्स इन देसी हिप हॉप. Definitely. Talking about Yungsta as a rapper in general, I don't think he has like a stereotypical rapper's voice. है ना? It's very hoarse. It's very not like your एकदम when you imagine a rapper, you don't imagine Yungi's voice at first. उसकी वजह से क्या होता है कि जो एकदम हार्ड गाने होते हैं ना, बार्स और ये सब वाले, उसमें to be honest he sounds a bit flat. मतलब वो बार्स चाहे उसके कितने भी अच्छे हो, वो he just doesn't have that throw. But I've noticed this in a lot of DHH rappers and also in Yungi, and I think a lot of times I notice in myself as well. थोड़ी सी जो non-stereotypical आवाज़ है ना, वो हार्डर गानों में इतनी अच्छी नहीं लगती, but on the more introspective songs, on the slower songs, on the songs where they're talking about themselves, because the आवाज isn't as dominating, अंदर का इमोशन और जो वो पूरा अंदर का सुर होता है ना, वो बहुत अच्छे से निकल के आता है. एंड आई थिंक यंगस्टा के साथ भी मेरे साथ यही होता है. And talking about the production in general of this album, मतलब it is Says, so obviously it sounds banging, hashtag जो उनका है bangers only. And I think in general Says is the only producer in Desi hip hop, because I personally think you're just a beat maker until you shape a full project like Seedhe Maut ki Bayan and Nayab and Ahmer ki Lil Kid Big Dream, Prabdeep ki, and now this. Nothing against beat makers, but this is what production is to me, कि तुम album की लह shape कर रहे हो, जो उसके हाईज एंड लोज है, लो टेंशन मोमेंट्स और उसका जो पूरा ग्रूव है, पूरी एल्बम का साउंडस्केप तुम शेप कर रहे हो. सो आई थिंक दैट वे Says has done a wonderful job, and also मतलब his mixes and masters are some of the best I have heard in Indian hip hop, and the guy does it from his room यार. I've had the fortune of watching him mix a track live and the guy is just a beast. I have his vocal chain और बहुत मतलब बढ़िया करता है वो काम. ठीक है, now let's start the album. The first track is Rubarus. इसमें I think he is just getting introduced to himself essentially. मतलब वो हमें अपने बारे में तो बता ही रहा है, but he's also sort of reliving his own life अभी तक की, है ना. तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी बीट थी, काफ़ी इंट्रोस्पेक्टिव. जो इंट्रोज इन जनरल एल्बम्स में इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं ड्रेक की वजह से भाई, उसकी वजह से आई थिंक सारे आर्टिस्ट का रैप वगैरह अच्छा हुआ हो या ना, इंट्रो गेम सबका टॉप हो गया. और आई थिंक दिस इज लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्रो. आफ्टर दैट कम्स द ट्रैक दिल्ली. और मतलब एनी टाइम एनीबडी टाइटल्स देयर ट्रैक दिल्ली,
तुम्हें पता है क्या आने वाला है. मतलब आई ऑल्सो हैव अ सॉन्ग कॉल्ड दिल्ली, उसमें भी यही है. दिल्ली के हर गाने में एक ही चीज़ है. और इवन हियर आई रियली लाइक द बीट एंड द हुक. आई लव्ड द आइडिया ऑफ काम एंड यंगी गोइंग बैक एंड फोर्थ एट फर्स्ट एंड फ्रैपे फिर बाद में आता है. और इसके फ्लोज भी बहुत अच्छे हैं, स्पेशली यंगी का. बट ऑनेस्टली आई डिडंट केयर एज मच फॉर द फर्स्ट 2 वर्सेस. आई हैव हर्ड यंगी एंड काम डू दिस काइंड ऑफ म्यूजिक, दिस काइंड ऑफ बार्स पहले एंड मच बेटर. एक गाना था DMC यंगी और सीधे मौत का, मुझे देख तो आके मुझे देख, ये लुक एट मी नाउ, ये वो बहुत अच्छा गाना था. उसमें क्या वर्सेस थे इन लोगों के यार. मतलब आई थिंक दैट इज द बेंचमार्क आई हैव फॉर दीज गाइज व्हेन इट कम्स टू योर रैपिडी रैप वर्सेस. और उसके मुकाबले तो ये थोड़ा सा मतलब आई हैव हर्ड बेटर वाला मामला. ऑल्सो इन दिस ट्रैक आई थिंक ओवरऑल व्हेन आई टॉक अबाउट द होल एल्बम, और उसका एक पूरा सीक्वेंस है ना, ये पूरी एल्बम मेरे को एक इंसान के जो प्रोटैगनिस्ट है इस एल्बम का, विच ऑब्वियसली इज यंगी आई थिंक, उसकी एक रात की पूरी कहानी लग रही है मेरे को. वेयर शाम के टाइम वो चीज़ स्टार्ट होती है. ही प्रॉब्ली हैज़ अ शो और समथिंग वेयर दिल्ली कम्स और पूरा बजा दिया एंड देन द थिंग प्रोग्रेसेस. तो उस मामले में मेरे को दिल्ली अच्छा लगता है. बट आई थिंक ओवरऑल honestly I didn't care for that track as much, and even उसके बाद I wasn't a fan of Sansani and Sukoon, even though इन दोनों गानों में थोड़ी अलग sound थी. Sukoon was meddling with some synthwave retro type stuff और ऐसा auto tune भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में था. ऑन सनसनी ही वॉज लाइक कि मैं वो चीज़ें बोल रहा हूँ जो कोई नहीं बोलता, एंड ही इज टॉकिंग लाइक मैं आई एम स्पीकिंग ट्रूथ टू द पावर एंड ऑल ऑफ दैट. बट इफ यू एक्चुअली लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग, वो ऐसा कुछ एसेंशियली बोल नहीं रहा है इस गाने में. इट्स सम ऑफ द मोस्ट वनीला एंड सेफ स्टफ आउट देयर. आई मीन श्योर इट्स लिरिकल एंड ऑल ऑफ दैट, बट वो मेरे को वो सनसनी वाली वाइब आई नहीं कि भाई इसने ऐसा कैसे बोल दिया. तो वो नहीं हुआ मेरे साथ. एंड सिमिलरली फॉर सुकून आई थिंक थीमेटिकली इट्स सॉर्ट ऑफ फिट. I'll tell you how, talking about the next 3 songs. But I think standalone also, and within the context of the album, the whole pacing of the album took a bit of a hit for me post the intro Rubarus. उसके बाद दिल्ली और सुकून दोनों थोड़ा मतलब I remember first time listening I got a bit scared कि अच्छा ये क्या मतलब इससे नीचे नीचे जाने वाली है क्या. And then comes NASCAR कि भाई it flips such a common motif of fast cars in hip hop है ना. And it talks about थॉट्स करे शिफ्ट गियर, माइंड करे ड्रिफ्ट, NASCAR. तो कितनी मतलब बढ़िया और शार्प राइटिंग है कि मतलब गाड़ी में हूँ मैं, सुकून से सोच रहा हूँ शायद शो के बाद कैसा गया, क्या चल रहा है, लाइफ कहाँ जा रही है, और फिर दैट गॉट इनटू अ थॉट लूप और अब माइंड रेस कर रहा है, अब ये हो रहा है, आई होप मैं क्रैश ना कर जाऊँ, ही सेज ऑन द NASCAR का हुक और समथिंग. एंड देन दैट क्रैश हैपन्स एंड after the crash there is mess all around and he's like I need to quit living like a mess. तो मतलब metaphorically and actually there is a mess and he's like I need to quit living like a mess. मतलब it started out so optimistically with Rubaru. सनसनी और सुकून आते आते he sort of realizes that it might be a farce. जो दिल्ली था the most hit song quote unquote of the album, it's like a point of self reflection कि भाई ये गाने चलेंगे, but by the time NASCAR comes Yungi's mind is probably like यार ये गाने बन गए, अच्छे गाने हैं, हिट हैं, बैंगिंग गाने हैं, बट द एंग्जाइटी इज स्टिल देयर. सो यू नोटिस द डाइकोटमी बिटवीन द 2 सॉन्ग. दिल्ली विच इज द हॉटेस्ट सॉन्ग ऑफ द एल्बम है ना. इवन इफ यू चेक इट आउट ऑन स्पॉटिफाई, दिल्ली हैज सम 89,000 लिसन्स ऑन स्पॉटिफाई एंड NASCAR के कुछ 16,000 है. तो क्लियरली अ सॉन्ग लाइक दिल्ली विल बी अप्रिशिएटेड मोर when compared to a NASCAR, and that's because he made that song जिसके बाद वो एक थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन का पॉइंट है. I mean I hope you get what I'm really trying to say. दिल्ली जो कि एक गाना मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं आया, even that song has its place in the album. So after NASCAR we go to the homecoming interlude. It's literally him grounding himself. वापस आ रहा है, वो homecoming हो रही है. And he's coming back after a traumatic episode and he's like counting his blessings, reflecting on things that are happening around him. So वो मेरे को काफ़ी एक रियल चीज़ लगी इसके बारे में. ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को. I would have wanted it to be a bit longer so that wanted to sustain that feeling, but ठीक है. उसके बाद on जीना इसी का नाम है and सवेरा, it's kind of the self motivation that we all want after we are at a very dark place. You go through a lot of shit, you feel like shit, you're at your lowest point, and then धीरे धीरे the actual and metaphorical सवेरा starts happening है ना. तो वो होता है, सवेरा होता है. You start getting more and more positive after you're at your lowest point with I need to quit and NASCAR. और फिर आता है
No Love in the Industry or Totka. I think I classify both the songs thoda similarly because both the songs sounded like a victory lap to me. Jo I think first listen pe ho sakta hai thoda out of place sound kare. I mean, Totka, just like Dilli, sounds more like a fire collab track more than something that fits coherently with the narrative. I think No Love in the Industry fir bhi thoda fit baithta hai that he talks about his win over the quote-unquote industry and how he's independent now and how that's empowering, है ना. Plus obviously the pianos on the beat काफी ऐसा positivity फैला रहे हैं. But Totka, even though it is a very fire track, मतलब भारी गाना है, बहुत beat भी बहुत अच्छी है, that sort of got me out of my listening trip. I don't think I would want to listen to that track as part of an album. अलग से कभी अगर playlist में बजेगा तो I'd be fine with it, but it sort of gets me out of that arc of पॉजिटिविटी एंड डार्कनेस वाले आर्क से मेरे को थोड़ा निकालता है. आई थिंक अब तक जितनी बारी मैंने ये एल्बम सुनी है मेरे को थोड़ा बैठा नहीं. हो सकता है आगे आई वुड गेट लाइक अ न्यूअर पर्सपेक्टिव ऑन इट, बट या इट इज व्हाट इट इज टिल नाउ. बट आफ्टर टोटका कम्स माय फेवरेट ट्रैक ऑफ द एल्बम. द फाइनल ट्रैक होना ही था, एंड दिस इज नॉट बिकॉज इट हैज सम अमेजिंग कोलैबोरेशंस एंड वर्सेस हैं बहुत बढ़िया, वो तो दिल्ली और टोटका में भी है. बट हियर द वाइब इज लाइक आफ्टर आई हैव हैड माय कोट सवेरा, मेरा हो चुका है सारा, गोइंग डाउन एंड कमिंग बैक अप अगेन हो गया है मेरा. मैं अपने डे वन दोस्तों को फोन कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट लेटिंग देम नो कि भाई देख ले, मैंने बोला था ये होना ही था. ये सब हो जो गंद होना था हमारे साथ हो गया है, नैस्कार और क्रैश वगैरह हो गया. अब मैं अपने 3 दोस्त जो मेरे साथ हमेशा से थे उनको फोन कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ भाई ये देख लो, यही है पॉजिटिविटी है. और उसमें पीछे ऐसे जो ट्रम्पेट्स वगैरह चल रहे हैं वो भी बहुत जबरदस्त लगे मेरे को. तो इट्स रियली नाइस, इट्स एन अमेजिंग पॉजिटिव ट्रैक. इफ यू हैव बीन लिसनिंग टू दीस गाइज फॉर सम टाइम यू विल फील ईच एंड एवरी बार ऑफ दिस सॉन्ग. इट वाज अ वेरी नाइस, अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोजर, एंड इन जनरल इट was a collaboration done right, something which fits with the album but it also works as a standalone track. तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. एंड yes, या इसी के साथ एल्बम खत्म हो जाती है. काफ़ी इतनी बड़ी एल्बम नहीं है, विच आई लाइक. लास्ट थिंग आई वॉन्ट इज ब्लोटेड एल्बम्स आज की डेट में जहाँ किसी के पास टाइम नहीं है दुनिया में. सो ओवरऑल आई रियली लाइक दैट एल्बम. आई वुड हैव वांटेड हिम टू स्टे लॉन्गर इन द डार्कनेस एंड स्ट्रगल वाला फेज दो. आई मीन नॉट एज अ पर्सन, एज अ प्रोजेक्ट. मतलब आई वांटेड द प्रोजेक्ट टू स्टे मोर इन दैट डार्कनेस वाला फेज, बिकॉज अभी क्या हो रहा है, इट स्टार्ट्स ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव नोट विद रूबरू. बीच में थोड़ा जो वो डार्क टाइम आता है उसमें इट डजंट लेट द एल्बम एंड द प्रोटैगनिस्ट सफर इनफ, ताकि सवेरा और टोटका जब आए तो वो गाने इतने ट्रायम्फेंट लगे. तुम्हें लगता है कि अभी तो जस्ट मेरे को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होना शुरू हुआ था. आई मीन ऑब्वियसली व्हाटएवर आई एम सेइंग इज वुडंट साउंड एज गुड बिकॉज आई एम जस्ट सेइंग आई वांटेड द आर्टिस्ट टू सफर मोर. बट समझ रहे हो ना, मैं थोड़ा चाहता था कि हल्का सा वो सफरिंग वाला आइदर गाने लंबे होते या फिर एक और कोई गाना होता जिसमें मेरे को एकदम अंदर रजिस्टर हो जाता कि हाँ भाई समथिंग इज गोइंग रॉन्ग. और उसके बाद फिर जब सवेरा और टोटका और नो लव इन द इंडस्ट्री आता तो उसका फिर मजा ही कुछ और होता है. आई थिंक तो वो मेरे को काफी अच्छा लगा. बट अदर देन दैट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सॉलिड एल्बम. आई हैव ऑलवेज बिन अ फैन ऑफ यंगी. मतलब मुझे याद है रेड अलर्ट जब गाना आया था और यंग फैजल, वो दोनों गाने बहुत ही ज्यादा सुने थे. मेरे को याद है एक बारी कोई तो स्पिडोप का गिग था, ही वॉज अबाउट टू गो अप ऑन स्टेज और स्टेज से पहले बार के साइड में ही वॉज गेटिंग हिज ड्रिंक, आई वॉज गेटिंग माई ड्रिंक, एंड एट दैट टाइम ऑब्वियसली ही वॉजंट एज बिग एन आर्टिस्ट एज ही इज नाउ. और मतलब काफी सिंपल सा छोटा सा पटीट सा आदमी, ऐसा चश्मा पहना हुआ है और ऐसे अपनी ड्रिंक पी रहा है. एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई वाज लाइक डूड आई कैन बी दैट. So वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा because again I relate to him on a चश्मिश rapper level. So yeah, I really like this album. Also another mention I want to make, Frappe का जितना contribution है in general इस album में और यंगी की life में, वो मेरे को काफ़ी मैं highlight करना चाहूँगा. Even the small skit after होना ही था where Frappe is like भाई, मतलब I think Frappe ही है वो, है ना. तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि भाई मैं पहले से सोच रखा है ये, मैं अपने सपनों में जी रखा हूँ ये चीज़ें, तभी मैं अभी सरप्राइज नहीं हो रहा. तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि that's the whole sour of the song. Also in general dude, just to list all the name drops जो इस एल्बम में है, सुनो मेरी. Encore ABJ, Calm, Frappe, Yungi, Inflict and Confuse, who are video directors. Says, of course, Raga, Faizan Khan, the founder of the movement. None of these guys were in our cultural zeitgeist आज से 10 साल पहले. तो मतलब when ABJ said कि हमने अपनी खुद की इंडस्ट्री बनाई है यहाँ पे, it's facts bro. Not only rappers, मतलब producers हैं यहाँ पे, directors हैं, designers हैं, labels हैं, सब अपना खुद का. And do you realize how strong it is for a city, for a region, for a country to have such a uniquely independent इंडस्ट्री इन द ट्रूएस्ट सेंस. हमारे लेबल भी अपने हैं, हमारा सब कुछ अपना खुद का है. वी डोंट नीड एनीबडी एल्स, राइट. सो वो मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी. एंड आई थिंक द मूवमेंट, सेज एंड यंगी, ये सारे लोग आर लाइक अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट. एंड आई वुड रियली वॉन्ट दिस टू कंटिन्यू.
And yeah, it's really nice that artists are finally making albums instead of a collection of songs. More people should do this. More people should be more vulnerable and talk about things that they are going through, because we are all going through it. And मेरे एक दोस्त ने मेरे को बोला था कि कितना भी गन बार्स कर लो, ड्रग बार्स कर लो, at the end we all have to come home वापस और अपने कमरे में ही वापस आना है. And उस समय पे all of these most lyrical bars won't make any sense. It's stuff like this, it's stuff like NASCAR, it's stuff like होना ही था that would really touch a chord with people like us. So yes, these were some of my thoughts on the album Meen by Yungsta. I really congratulate him for such an amazing album, such an amazing debut. और yes, तुम लोग मुझे बताओ यार तुम्हें कैसी लगी ये album. If you liked it, if you didn't like it, तुम्हें क्या गाने अच्छे लगे, और तुम और कौन सी albums और देसी hip hop music का review चाहते हो मेरे से, because I'm somebody who's really passionate about the kind of music I like, and I really like all of these guys. बहुत बढ़िया लोग लगे मेरे को. Yes, this was Do I Like It? I was Prateek, and I'll see you in the next one. Do I Like It is a Quint original podcast, executive produced by Shelly Walia and Ritu Kapoor. This episode was hosted and produced by Prateek Lidhu and edited by Ira Narayan. The episode uses audio from the album Meen by Yungsta, and the theme music is from BMG. You were listening to the Quint's podcast.